Hi, hello, namaskar. Welcome to Avigna Solution YouTube channel. Welcome on behalf of Avigna Corporate Solutions, the firm who are totally focused on NBFCs and housing finance companies compliances. We at Avigna Corporate Solution provide standard services on end-to-end compliance and monitoring, compliance testing services for middle layer, base layer, and all the housing finance companies across the India. The topic today is how the new RBI reporting portal. As we all know, the NBFC's reporting will be done through XBRL portal. Now in month of December, RBI have made live of their CIMS portal, where RBI have requested all the NBFCs to report their applicable returns on XBRL as well as CIMS portal. This dual reporting will be happen till this CIMS portal properly familiarized and properly stables. आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हमें CIMS पोर्टल जो RBI का नया पोर्टल है उस पर किस हिसाब से फाइलिंग करना चाहिए, क्या क्या हमें उस चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और हमें RBI की इस गाइडलाइन के थ्रू किस तरह से पालन करना चाहिए। तो आइए देखते हैं हाउ डू वी डू द CIMS filing which is related to NBFCs. Now there is a two portal. If everybody knows, there is a two portal of CIMS login. One is called the Sankalan portal, another is proper CIMS. So as of now, जो RBI का संकलन पोर्टल है, that is focus on the NBFCs related. So you just use that sankalan.rbi.org.in. Then use the user ID. User ID is provided by the RBI through their email, and the password and the mobile number, and the OTP is come to your mobile number. There are two admin 1 and admin 2. So this CIMS portal are totally different from the existing XBRL portal. On the XBRL, you just need to log in through ID, password and NBFC code. Here, ID, password and mobile number is already registered with the RBI. You get a OTP. On the OTP, you get authentication that yes, you are a user from the company side. Log in on the portal. After providing the OTP, click on submit. You guess this is a home page. This is a clear home page of the new RBI data reporting and management portal. On here, you get the code of the NBFCs. From this, you get the name of the NBFCs. Now, on the left hand side, you have this 6th tab. Administrator, IT setting, that is your related to portal setting, download, return submission, report and auditor management. Let's see one by one. The first what I can explain you is that administrator. पोर्टल को यूज करने के लिए क्या है, जैसे हम XBRL में बार बार देखते चेकर मेकर की लॉगिन आईडीज है, किसको क्या राइट्स देना है, ये सारी चीज। तो पहला जो है यूजर क्रिएशंस, यूजर मैनेजमेंट, दो आईडी admin 1 and admin 2 is provided by the RBI and it up to NBFCs they can create a multiple role and provide a multiple ID. Suppose DNBS 1 किसी एक को चेकर मेकर देना चाहता, they can give DNBS 2 को अलग देना चाहते हैं, 13 अलग है, 10 अलग है। इससे आप इस पर्टिकुलर टाइम में से आप वो चीज कर सकते हैं। CIMS API ऑनबोर्ड जो बिगर NBFCs हैं, वी कैन से ऑन टॉप लेयर या बाकी NBFC खास करके बैंक, उनके लिए है फिलहाल कि ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो डिसेबल। इंटायर अलग पैन मैनेजमेंट, फ्रॉड मैनेजमेंट, ये अभी तक NBFCs के लिए लाइव नहीं है। अगर मैं NBFCs की बात करूं तो आप ऐड यूजर और एडिट रोल, मतलब ऐड रोल दिस एंड एडिट रोल व्यू रोल, ये आप 3-4 कॉलम ही देख सकते हैं, बाकी अभी तक लाइव नहीं है फॉर NBFCs। नाउ द नेक्स्ट IT सेटिंग आई स्कीप, देखो तो उसमें सिंपल है आपका सिस्टम का सेटिंग, आपके पोर्टल का लॉगिन, मेल आईडी एंड ऑल द थिंग। डाउनलोड, अब ये है कि सबसे बड़ा क्वेश्चन, CIMS पोर्टल जो है
इस पे हम रिटर्न बनाएं कैसे? द सेम वे जैसे हम XBRL में करते थे, हम लॉगिन करने के बाद रिटर्न पैकेज डाउनलोड करते थे, यहाँ पे भी आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद डाउनलोड में जाना है, और डाउनलोड में ये वाला जो ऑप्शन है डाउनलोड रिटर्न टेम्पलेट टेक्सोनॉमी एंड रिटर्न फॉर्मेट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यू गेट वन डाउनलोडिंग ऑप्शन फॉर द रिस्पेक्टिव रिटर्न्स। बाकी के जो 3 है FAQ, अगर आपको रिटर्न्स के बारे में समझना है कि क्या रिटर्न्स है, क्या है उसका FAQ, किस तरह से चल रहा है, वो होता है। एंड मास्टर्स, हर एक चीज के बारे में FAQ है, यहाँ पे RBI ने प्रोवाइड किया है। आफ्टर क्लिकिंग दिस, वन सेटअप फाइल विल बी ओपन लाइक दिस। अगर आप डाउनलोड रिटर्न एंड टेम्पलेट फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह के रिटर्न्स कुछ आ जाएंगे। ये जो रिटर्न्स के नेम है ये आपके NBFCs के एसेट साइज के डिपेंड करते हैं। अगर यहाँ पे आपको कुछ मिसमैच रखता है, से फॉर एग्जाम्पल जब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर NBFC बेस लेयर की है जिसकी एसेट साइज लेस देन 100 करोड़ है, उसके लिए क्या रिटर्न्स अप्लीकेबल होंगे, 500 टिल 100 to 500 के लिए क्या है, मोर देन 500 के लिए क्या रिटर्न्स है। तो ये अगर रिटर्न गलत मैप है, अगर आपको वो अप्लीकेबल रिटर्न नहीं दिखता है, अब ये जो NBFCs का जिसका ये स्क्रीनशॉट है, इस पर्टिकुलर NBFC जो है वो 100 से लेकर के 500 के बीच में है, इसके लिए इनके DNBS 2, 4B, DNBS 10, DNBS 13 एंड 4A ये रिटर्न अप्लीकेबल हैं। आप एक रिटर्न के ऊपर क्लिक करिए, डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा, आप डाउनलोड करिए, फॉलो द प्रोसेस एंड प्रिपेयर द रिटर्न्स ऑफ दैट फॉर्मेट। जिस तरह से हाउ टू प्रिपेयर रिटर्न स्टेप बाय स्टेप हम अपने अगले वीडियोज में देखेंगे। फिलहाल के लिए जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट द CMS पोर्टल। द नेक्स्ट, अब यहां पे एक छोटा सा कैची है कि ये रिटर्न्स है जो DNBS 2, 4 ये XBRL के ओल्ड पोर्टल के हिसाब से मैपिंग है, और नए पोर्टल की मैपिंग CMS में ये है R039, R228, DNBS 13 का R223 द नेम है रिटर्न्स। नाउ द कम टू द रिटर्न सबमिशन। अगर आपने डाउनलोडिंग किया, रिटर्न बना लिए और रिटर्न सबमिट करने के लिए देयर इज अ रिटर्न सबमिशन, गो टू द थर्ड ऑप्शन अपलोड रिटर्न। रिवाइज रिटर्न, अनलॉक रिटर्न, ये सारा चीज वी विल टेक केयर इन द लेटर स्टेज। अपलोड रिटर्न्स, एक बार आप रिटर्न्स क्लिक ऑन द अपलोड रिटर्न्स, इस बटन पे आप क्लिक करिए एंड अपलोड द XML। आप अपलोड XML कैसे होता है, अपलोड XML उस पर क्लिक करेंगे, देन हियर इज कम टू द नेम ऑफ द कंपनी, यू हैव सेलेक्ट सी नेम ऑफ द कंपनी, देन यू सेलेक्ट द रिटर्न्स नेम, कौन सा रिटर्न है, DNBS 2 है, 10 है, 13 है, 4A है, 4B है, उसका कोड, जैसे हमने कहा कि उसका कोड है। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर एक मिसमैच हो रहा है तो यू हैव टू टेक अ स्क्रीनशॉट, सबमिट टू CMS हेल्प डेस्क ऑफ द RBI, यू गेट द प्रॉपर रिटर्न। एंड देन रेफरेंस डेट, बहुत बार ऐसी क्वेरी आती है कि मैं आज फाइल कर रहा हूं तो क्या आज का डेट लूंगा या कौन सा डेट, नहीं, जिस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप फॉलो कर फाइलिंग करें। सपोज मैं DNBS 13 फाइल कर रहा हूं जून 23 का, तो रिफंड डेट आएगा 30/6/23। अगर मैं DNBS 10 फाइल कर रहा हूं 2022 के फाइनेंशियल ईयर्स का, तो वहां पे रेफरेंस डेट आएगा 31/3/2022। क्लिक एंड देन क्लिक ऑन रिटर्न डॉक्यूमेंट, मतलब XML फाइल। आपको यहाँ पे XML फाइल फिक्स करनी है। एक जो मेजर चेंजेस यहाँ पे RBI ने लाए हैं वो है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर आपको किसी रिटर्न्स के साथ जो XML में रिटर्न है, क्योंकि बहुत बार हम अपने जो रिटर्न बैलेंस शीट बनाते हैं आइदर वो गैप अकाउंटिंग सिस्टम से बनता है या INDS के सिस्टम से बनता है, या कभी कभी ऑडिटर जो है एक अलग रिपोर्टिंग करता है जो DNBS 10 के डेटा के साथ मैच नहीं करता, या आपको एज ए कंपनी आपको कुछ यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना है, तो यहाँ पे आप PDF में अटैच कर सकते हैं, उसका एक ऑप्शन है। आफ्टर दैट यू जस्ट क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, आप सबमिट करेंगे, यू गेट अ नोटिफिकेशन रिटर्न इज सक्सेसफुली सबमिटेड। रिपोर्टिंग वाला पार्ट, दिस पार्ट आई विल स्पीक राइट नाउ। रिपोर्टिंग पार्ट जो है मतलब मेजर चेंजेस है XBRL पोर्टल से CMS पोर्टल में। ऑडिटर मैनेजमेंट, जैसे कि हमारे पुराने वीडियोस में आपने इस चीज को देखा होगा कि DNBS 10 जो रिटर्न है वो ऑडिटर के ID से लॉगिन होना चाहिए, क्योंकि RBI हमेशा मानती है कि कंपनीज का जो डेटा है, जो रिपोर्ट है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट।
तो ऑडिटर को फाइल करना चाहिए अपने लॉगिन आईडी से। बट अगर प्रैक्टिकली मैं बात करूं, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी लेट फाइलिंग किया, ऑडिटर ने तो अपना पीडीएफ साइन करके दे देते हैं, फिर ऑडिटर बोलता मुझे ये फाइलिंग करना है तो उसके लिए मुझे अलग से चार्जेस लगेगा। तो आप सुपर एडमिन आईडी या यहाँ पे जो एडमिन 1 या एडमिन 2 आईडी है उससे भी आप फाइल कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। बट अगेन फॉर द मिडिल लेयर एनबीएफसीज, ये बेस लेयर के लिए थी, बट अगर इफ यू आर मिडिल लेयर एनबीएफसी, रिक्वेस्ट यू दैट DNBS 10 should file from the auditor IDs only। आप यहाँ पे आते हैं, ये रिटर्न में है ऐड द ऑडिटर, ऑडिटर का नाम डालिए, उनका अपॉइंटमेंट कौन से पीरियड का, उनका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यू गेट द आईडी फॉर द ऑडिटर एंड स्टार्ट फाइलिंग DNBS 10 फ्रॉम द ऑडिटर आईडी। बट प्रैक्टिकली एज आई सेड, फॉर मिडिल लेयर इज मैंडेटरी टू हैव, फॉर बेस लेयर गुड टू हैव। नाउ कम टू द बैकवर्ड रिपोर्ट। मैंने रिटर्न अपलोड कर दिया, अब उसका रिपोर्टिंग का क्या? तो रिपोर्टिंग के लिए है, आप रिपोर्ट्स पे क्लिक करिए, यू गेट 2 सेपरेट पोर्टल, वन इज रिपोर्ट, अनदर इज MIS। यहां पे इन्होंने RBI ने किया जो कि अभी थोड़ा सा डेवलप नहीं हुआ है पूरी तरीके। जितने आपने रिटर्न ने सबमिट किया है उसका एक MIS तैयार होगा, यू कैन डाउनलोड एंड कीप इट योर रिकॉर्ड। और अगर कोई रिटर्न पेंडिंग है जो आप भूल गए हैं सबमिट करने का, ये भी आपको उसका रिपोर्ट देगा, बट वो अभी तक पूरी तरह से लाइव नहीं हुआ है। कम टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज रिटर्न सबमिशन, रिटर्न फाइलिंग इंफॉर्मेशन, अनलॉक रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, एप्लीकेशन फॉर ट्रैकिंग। तो एक बार रिटर्न सबमिट हो गया, उसके बाद अगर आपको उसमें कुछ करेक्शन कराना है, कभी अभी होता है रिटर्न मैंने सबमिट कर दिया उसमें मुझे कुछ करेक्शन कराना है, तो आप यहां से उसको रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। बट फिलहाल अभी हमारा जो ये काम है वो है फर्स्ट से आप रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक करिए। जैसे रिटर्न फाइलिंग पे आप क्लिक करेंगे, रिवाइज रिटर्न है वो अगेन अगर कुछ मिस्टेक हुआ, कुछ चीज हुआ उस पर करना है। आप रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक करते हैं, आपको इस तरह का एक टैब आएगा, सेलेक्ट करिए यहाँ पे अपलोड स्टार्ट, कौन से पीरियड के लिए रिटर्न आप देख रहे हैं, इन डेट, यहाँ पे आप मल्टीपल सिलेक्शन है, कौन सा रिटर्न आप सेलेक्ट करना चाहते हो, कौन सी पर्टिकुलर है, कौन आईडी, चैनल मतलब कौन से यूजर ने, सब चेकर ने डाला है, मेकर ने डाला है, एडमिन 1 है, एडमिन 2 है, ये सारी चीज आप सेलेक्ट करिए। देन यहाँ पे NBFC का आ जाएगा, सेलेक्ट ऑल द कैटेगरीज, कंपनी का नेम और रिटर्न का नाम आपको सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन सबमिट। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का एक ट्रैकिंग सिस्टम पता चलेगा। जैसे ही आप, और ये एक इंफॉर्मेशन है फाइलिंग इंफॉर्मेशन, हर एक रिटर्न का एक कोड जनरेट होगा, तो आपको पता चलेगा मैं कौन सा रिटर्न कौन से ट्रैकिंग के साथ अपलोड किया, तो एक टोकन जनरेट होगा। ये है उसका ट्रैकर, अपलोड रिटर्न, मेटा डेटा वैलिडेशंस, बिजनेस रूल वैलिडेशन, एंटिटी अप्रूवल, अभी वो ऑटो है, माइट भी फ्यूचर में वो डिजिटल भी होगा, आधार OTP बेस होगा या नॉर्मल ईमेल मोबाइल OTP बेस होगा, पता नहीं। RBI रिव्यू अभी भी ऑटो है, आगे का वी कैन नॉट से एंड द कंप्लीट। अगर ये पूरे 6 के 6 स्टेप आपको ग्रीन में दिखते हैं तो समझ लीजिए आपने जो रिटर्न फाइल किया है वो कंप्लीट हो चुका है। ये नॉर्मली 24 आवर्स से लेकर के 72 आवर्स लगता है इन 6 स्टेप को पूरे करने के लिए। अगर कभी इस रिटर्न्स में हुआ कि नहीं आपका कुछ गड़बड़ हुआ, कहीं पे कुछ अलग हो गया है, तो ये स्टेज क्या कलर कोडिंग मैप है। अगर ग्रीन हुआ सक्सेसफुल है, अगर वहां पे वो ब्लिंक कर रहा है ऑरेंज कलर मतलब वो करंट स्टेज पे अटका। सपोज आपने अपलोड किया बट वो मेटा डेटा वैलिडेशन में है, मतलब जो आपने रिटर्न बनाया है और जो CIMS पोर्टल का टेक्सोनॉमी है उसे वो वैलिडेट हो रहा है, वहीं पे रुका हुआ है। या रेड में हो गया, सपोज बिजनेस वैलिडेशन रेड में आ गया, मतलब वो फेल्ड हो गया, यानी कुछ तो रिटर्न में कुछ एरर है, कोई तो रिटर्न में मिस्टेक्स है जिसकी वजह से वहीं फेल हो गया। जैसे ही फेल होगा वहां पे एक हाइपर लिंक आता है, उस हाइपर लिंक पे आप जान सकते हैं कौन सी पर्टिकुलर टैब पे कौन से पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आपको मिस्टेक है, वो रिवाइज आप मिस्टेक का आप क्लियर करिए और दोबारा अपलोड करिए। ये एक पोर्टल है, अगेन आई जस्ट रिपीट बैक, आपको ये ट्रैकिंग जो है ये यू हैव टू ट्रैक दिस आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न। एक बार वो आप ट्रैक कर लेते हो उसके बाद आपको सबमिट है, और इसमें आपको हमेशा एक मेल आता है, आप जिस चीज से और रिटर्न फाइल होने के बाद आपको एक PDF एक्नॉलेजमेंट भी जनरेट होता है। बहुत बार लोग कह देते कि मैंने CIMS में रिटर्न फाइल किया लेकिन मेरा कुछ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट नहीं है। मैं आई ऑलवेज से टेक ए स्क्रीनशॉट, बट CIMS पोर्टल में आपको हमेशा एक मेल आता है, और जैसे रिटर्न अपलोड करते हैं
जिस तरह से आप रिटर्न अपलोड करते हैं वहीं पे आपको एक ट्रैकिंग सिस्टम दी जाती है। ये ट्रैकिंग सिस्टम वहां से पीडीएफ में एक्सपोर्ट होता है, तो आप पीडीएफ एक्सपोर्ट करके भी आप उसको सेव कर लेते हैं। So that's it for the today. I really thank you for being with this YouTube channel, and thank you so much for subscribing this Avigna Corporate Solution YouTube channel. And if you have any queries related to NBFCs, related to housing finance, or any kind of compliance, policy drafting, branch audit, internal audit, anything, just email info@theacs.in or WhatsApp me on that number. Stay tuned for the more information, more videos, which is only focus on NBFCs, compliances and housing finance company compliances. Till then, thank you so much.